हुरैरा रमशा लोगों को मैसेज कर दो बेटा. Okay, we started this paper yesterday and we are done till the last of the paper, but still last two questions are left. So let's do it and let's start the new paper then. Okay. A group of office workers are each asked to record the distance in kilometers. They travel to work and the results from the journeys are shown in the histogram. So whenever I see the word histogram, you have to write the formula of the histogram, that FD is equals to frequency divided by class interval multiplied by K. That's the formula for the histogram. You have to write the formula, okay, before proceeding the question. Now you can see that there are three pillars already drawn, and they say that there are 20 workers in 0 to 5 group. There are 20 workers. So the why they give us this information, because in order to check the value of K. Checking K. So checking K, that's the intention. So FD for the first pillar is 4 and the frequency is 20 given in the question, and the class interval is 5 minus 0 is 5, so multiply by K. So 5 fours are 20, so 20 is equals to 20K. Most of the times in paper 1 के अंदर most of the time जो है ना K की value 1 ही आती है. Now they say that there were 12 workers in the group 20 to 40. 20 to 40 complete the histogram. So 20 to 40 there are 12 workers. So FD is equals to frequency is 12, and the class interval from 20 to 40 is 20. So let's do some cutting. So it's 6 by 10, which is equals to 0 0.6. So let's complete the uh, this is the last pillar you are going to draw. Okay, once you're done with the pillar, just drag these little lines in it, okay, in order for the better scanning process. All right, now they say that calculate the percentage of the workers who travel more than 20 kilometers. So more than 20 kilometers, they are only 12 people. Agree? So we don't know about the total number of the people, right? We are aware about the first and the last pillar only. Let's find out the second and third one here. So FD is equals to frequency divided by class interval. FD for the second pillar is 6, frequency is unknown, and the class interval is 5 to 10, which is 5. So F is equals to 30. So it means that there are 30 people in this pillar, right, Malaika? Let's find out the frequency of the third pillar, Horera. Formula is FD is equals to frequency divided by class interval. I'm not writing K because K is equals to 1. Okay. So FD is pillar key have 1.8. You can see that. That the FD of this pillar is 1.8. Frequency is unknown and the class interval is 10 to 20. There are 10 people. So F is equals to 18. So there are 18 people. So now they say that calculate the percentage of the worker who travel more than 20. So more than 20, there are 12 people. Why? Because it's given in the question. Total are 20 plus 30 plus 18 plus 12. So it's 30 plus 60, 80. There are 80 people in total. So 12 divided by 80 multiplied by 100. That's the. Now we have to do some cutting. So 0 0 cancel करें पहले. 12 और 8 जो है 4 में कटता है, तो 4 3s are 12, 4 2s are 8, multiply by 10. Now 2 1s are 2, 2 5s are 10, 4 5s are, there are 20% people who travel more than 20 kilometers to work. Okay, so that was the second last question of this paper. Acha, most of you were struggling in the last part of this question, last part of this paper. रिदा एंड रमशा बेटा, ये पेपर हमने कल स्टार्ट किया था. इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने कैसे किया है ये ज़रा देख लें. आप लोग लेट आए हैं थोड़ा सा. लिखा हुआ है बेटा कि ग्रुप ऑफ ऑफिस वर्कर्स आर ईच आस्क्ड टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस इन किलोमीटर दे ट्रेवल टू वर्क एंड द रिजल्ट्स आर शोन इन द हिस्टोग्राम. जैसे ही आप हिस्टोग्राम देखो, आप हिस्टोग्राम का फॉर्मूला लिख दिया करो, दैट एफ डी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय के. आपने फॉर्मूला लिख देना है, फिर के को चेक करना है. अब जरा देख लो कि पहले ही उन्होंने कह दिया कि देयर वर 20 वर्कर्स इन 0 to 5 ग्रुप, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है. इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा. इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, मैंने 20 लिखा. इसका क्लास इंटरवल जो है वो 5 है, मैंने 5 लिखा. के की वैल्यू चेक की है, के की वैल्यू 1 आ रही होती है. मैंने तमाम स्टूडेंट्स को बताया है कि पेपर 1 में यूजुअली के की वैल्यू 1 ही होती है. अब के को इग्नोर करना है. कहते हैं देयर वर 12 वर्कर्स इन द 20 to 40 ग्रुप. 20 to 40 ग्रुप में 12 लोग हैं, तो 12 इज द फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल इज 20 to 40 इज 20. तो 12 डिवाइड बाई 20 इज 0.6. तो हमने 0.6 का पिलर कंप्लीट किया.
देन दे आस्क्ड अस कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वर्कर हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर। तो हमें परसेंटेज का फॉर्मूला पता है विच इज पार्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम्स 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज। ठीक है बेटा, अब परसेंटेज का ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास पार्ट मौजूद है दैट इज 12, बट आई डोंट नो कि हाउ मेनी टोटल पीपल आर देयर। सो मैंने क्या किया कि इस पिलर की फ्रीक्वेंसी निकाली है यूजिंग हिस्टोग्राम फॉर्मूला। ठीक है रमशा, ठीक है ओके, और फिर इस पिलर की फ्रीक्वेंसी निकाली है यूजिंग हिस्टोग्राम। इज दिस क्लियर? So I got that 12 divided by 80 multiplied by 100 and the result was 20%. Is this clear everybody? सर मेरा आंसर 15 आ रहा था। 15 क्यों आ रहा था? आपने गलत किया होगा ना फिर कुछ। बेटा आप लोगों का आंसर 15 आ रहा था कि 20 आ रहा था? मेरा तो 20 आ रहा है। सर मेरा भी 15 है। नहीं तो 15 क्यों आ रहा है? आप लोगों का टोटल कितना आया फिर? सर ये 12 आपने गलत कटिंग की है। कैसे कटिंग गलत हुई है बताएं जरा मुझे, देख लेते हैं ना। खैर है, हाँ यस 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 सर 3 आर 12। यस 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 यस, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो बस ये हो गया, ये हमारी कटिंग गलत हुई थी। 4 3s are 12 and 4 2s are 8। थैंक्स बोथ ऑफ यू। 3 5s are 15%। ओके चले, थैंक यू, बस हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है चलें जी, लास्ट क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक फ्रैक्शन थी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। कहता है एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जरा देख लें जरा इधर पहले, ये कहता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a डिवाइड बाय, मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 4 एंड x माइनस 4, राइट? यस और नो? Can I write this because I know that this is my third identity? Yes or no? Yes or no everybody? Okay. That is equals to, जब simplified हो जाएगा, जब that is equals to, जब simplified हो जाएगा तो that is equals to 2x plus b डिवाइड बाय x प्लस 4, ये इसके बराबर है सिंप्लीफिकेशन के बाद। नाउ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर x माइनस 4 है जो कि कट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले इस साइड के जरा डिनोमिनेटर को सेम कर लें, x माइनस 4 और x माइनस 4। अब ये दोनों कुछ एक जैसे हो गए, एग्री? अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के इक्वल है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर। यस और नो? यस और नो? सो मैं न्यूमिनेटर को इधर इधर लिख देता हूँ अपनी जगह पर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a डिवाइड बाय x प्लस 4 एंड x माइनस 4, ये इधर ही रहे जी बेटा। सर ये x माइनस 4 आपने ऊपर क्यों लिखे? ये बेटा दोनों साइडों को कंपेयर किया है, क्योंकि जब जब यहाँ पर कटिंग होगी ना तो ये रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट आना है। ठीक है, समझ आ गई ना? ये लिखा हुआ है ना कि कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव। ठीक है, जी। तो अब हमने यहाँ पे दोनों साइडों को सेम किया है, हमें पता है कि यहाँ पे x माइनस 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, नाउ डिनोमिनेटर को एज इट इज इसके नीचे भी लिख दें। ठीक है, जरा ऊपर इसको मल्टीप्लाई करें, जरा 2x को मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस bx। ओके, देन सॉरी, या प्लस bx प्लस माइनस 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 4b। यस और नो? यस और नो? क्या ये मैंने ठीक किया है? देखिए मैंने सिर्फ एक्सपैंड किया है इसको। अहमद बेटा ये चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है? यस सर। जब इन दोनों को एक्सपैंड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप ले रहा हूँ, दोबारा मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a डिवाइड बाय x प्लस 4 और x माइनस 4। ओके, यहाँ पर ये हो रहा है कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन है तो हम लोग कहते हैं कि x इज कॉमन, तो माइनस एक्स इज कॉमन और अंदर लिख देंगे 8 माइनस बी ब्रैकेट माइनस 4b डिवाइड बाय x प्लस 4 और x माइनस 4। मैंने x को कॉमन निकाल दिया। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? सर ये स्टेप दोबारा समझा दें। देखो ये क्या किया है मैंने, ये जरा यहाँ पे जरा नोट करें, अच्छा कि ये मैं यहाँ पे जरा इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर आप लोग जरा ये देखें, ये x के साथ ये x जो है इसमें x कॉमन था, मैंने x को कॉमन निकाल दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, जरा अब गौर करें,
अब जरा गौर करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये -5x जो है ये इस चीज के बराबर है, यस और नो, यस और नो बेटा, -5x जो है ये इस चीज के बराबर है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? रिदा, यस सर। समझ आ रही है बेटा? जी सर। मैं यहां से b की वैल्यू निकालूंगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है? ओके, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, ठीक है? यहां पे x का कोफिशिएंट है -5 और वहां पे x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 8 b। यस और नो? यस और नो बेटा? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, देखो वहां पर -x के साथ 5 लिखा, x के साथ -5 लिखा हुआ है कि नहीं? यस और नो? बेटा गौर करें जरा इस क्वेश्चन के ऊपर, लिंक बनाएं, जहां पे समझ ना पड़े मुझसे पूछें जी। ये लिखा है -5 इज इक्वल टू 8 b। ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, समझ आ रही है आपको? ये कैसे x का, ये इक्वेट x, हाँ ये x का कोफिशिएंट है जो इसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे b निकालेंगे तो हम लोग b को उधर ले जाते हैं और 5 को इधर ले आते हैं, तो 8 + 5, तो b की वैल्यू 13 आ रही है। क्या आप लोगों की b की वैल्यू 13 आ रही थी? जी बेटा, क्या आप लोगों की b की वैल्यू 13 आ रही थी? ये सॉल्व नहीं हुआ था क्वेश्चन। सॉल्व नहीं हुआ था क्वेश्चन? नो सर। क्यों सॉल्व नहीं हुआ था आपका क्वेश्चन, ये भी बताएं। सही है, ये इसी सब में से मुश्किल था जो आपने ऊपर की है। 2x चलें स्क्वायर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं दोबारा, ताकि थोड़ा और अच्छे तरीके से और भी समझाएं आपको, ठीक है? जरा दोबारा देख लें, ठीक है? जरा दोबारा देख लें इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है और इसी तरह के ये A* क्वेश्चन है पेपर में। अच्छा, ये A* क्वेश्चन है, इसकी मार्किंग स्कीम में भी मैंने पढ़ा था तो उसमें भी ये लिखा था। देखें यहाँ पर जरा, ये बराबर है बेटा 2x + b के और x + 4 के। नाउ हमें पता है कि यहाँ पर x + 4 के साथ इसके डिनोमिनेटर को भी मैं जरा सेम कर देता हूँ, तो ये हो गया जी सेम। यस और नो? अब ये क्लियर है बेटा? ये स्टेप क्लियर है सबको? जैसे जैसे क्लियर होता जाए यस बोलते जाए, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? यस Yes, रिदा, सर। रिदा ये फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है? रिदा ये फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया बेटा? सर डिनोमिनेटर सेम किए। डिनोमिनेटर सेम किए हैं। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। यस और नो? यस सर। हमें ये इस चीज का पहले से इल्म हो चुका था, दैट इज द रीजन हम लोगों ने इसको आसानी से हम लोगों ने इसको कवर अप किया। ऐसे ही है। हम्म। फिर इसके बाद जब हमारे पास हो गया तो क्या हमारे पर राइट साइड पे एक्सपेंशन आएगी? क्या हमारे पास राइट साइड पर एक्सपेंशन आएगी मेरा बेटा? जी सर। राइट साइड पे जब एक्सपेंशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे उसके साथ, ठीक है? राइट साइड पे जब एक्सपेंशन आएगी तो वो बेसिक अलजबरा हमने यूज करना है। एग्री? और वो बेसिक अलजबरा हमें क्या करके बताएगा? बेसिक अलजबरा हमें क्या करके बताएगा मेरा बेटा? वो हमें ये करके बताएगा कि दैट 2x² - 5x + a डिवाइड बाय x + 4 और x - 4 ऐसे हो जाएगा। एग्री? अब जरा बेसिक अलजबरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जरा बेटा। अब ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आएगा 2x² - 8x + bx - 4b डिवाइड बाय द सेम डिनोमिनेटर। यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक क्लियर है बेटा रमशा आपको? ओके, अब जरा ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये देखें, यहां पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये, ओप्स सॉरी, यहां पे ये देखें बेटा, यहां पे ये लिखा हुआ है ये, इसके साथ अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहां से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? ताकि हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है ना वो सेम हो जाए। क्या हो जाए बेटा?
एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो जरा अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं जरा। सेकंड स्टेप सबको समझ आ गया बेटा? कोई Yes, मसला sir. नहीं है, मैं दोबारा कर दूंगा क्वेश्चन, खैर अटेंशन ना लें आप लोग, ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा क्वेश्चन कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है? एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर ये बराबर है बेटा 2x² के। अब अगर मैं इसमें से प्लस एक्स को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर आ जाएगा -8 + b। यस और नो? एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया है, ठीक है जी? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी? तो नीचे x + 4 x - 4 आ जाएगा, राइट हाजिम? नीचे वाले से ये ऊपर वाले में कंफ्यूज हूँ सर, -8x + bx। ये बेटा ये मल्टीप्लाई हुआ है, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो ये यही आता है, आप करके देख लो रफ वर्किंग में, कोई मसला नहीं, तीसरी दफा भी सर अटेम्प्ट करूंगा जी। सर लास्ट टाइम आपने लिखा था कि 2x² - x और +8 था। पॉजिटिव, खैर कोई बात नहीं ना, हम लोग पॉजिटिव एक्स को कॉमन ले लिए, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कोई बात नहीं, इस चीज का कोई मसला नहीं है कि आप कौन सा कॉमन निकाल रहे हो, इज दिस क्लियर? यस इस चीज का कोई मसला नहीं है कि आप कॉमन कौन सा निकाल रहे हो, ठीक है? अब जरा फॉर एग्जांपल एक चीज जरा नोट करें, एक चीज जरा आप नोट करें, अच्छा, कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है, ये अब मैं अब आपको और सिंप्लीफाइड करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, अभी जरा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि जी बस मेरा ये जो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ये खत्म हो गया, ठीक है? ये दोनों सेम डिनोमिनेटर खत्म हो चुका, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है आपका, ये हाजिम बेटा, जी आपको नजर आ रहा है कि ये 2x² + x इंटू -8 + b लिखा हुआ है, यस। -4b लिखा हुआ है ना? एग्री? यस सर। ओके, ये बेटा बराबर है इस चीज के, नजर आ रहा है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। यस और नो? यस और नो? न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यस और नो? ये मैं आगे करके डिटेल भी करूंगा इस क्वेश्चन की। आई एम गोइंग टू राइट द न्यूमरेटर राइट बिलो, मैं इसके नीचे जरा न्यूमरेटर देख रहा हूँ, +5 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये प्लस लिख के हम लोगों ने, ठीक है? ये प्लस हमने लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है -5, तो मैं यहाँ पे जरा -5 लिख दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है? और यहाँ पे लिख दूंगा मैं x, ठीक है? -4b, तो ये आएगा +a, ठीक है? अब जरा देखें, जरा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल पुट किया है, एग्री और नॉट? यस और नो? जरा देखिए बेटा, यहाँ पर x के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, नजर आ रहा है सबको? सर वो x क्यों नहीं लेंगे? क्या नहीं नहीं, x भी कंपेयरिंग कर रहा हूँ ना, कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा बेटा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ये वो रमशा, फॉर्मूला ax² जी + bx + c। हाँ हाँ, ये वही फॉर्मूला है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, जरा चेक करो बेटा। इसमें ये लर्निंग ये है कि 2 के बराबर है ना, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये लर्निंग है इसमें, ठीक हो गया? ओके ये लास्ट 2 में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें बी भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो इसलिए अभी इसको होल्ड करेंगे, पहले बी निकाल लेंगे, ठीक है? तो we'll write that -5 is equals to -8 + b. Is this clear, Ramsha? जी Okay. So now -8 को आप यहाँ पे ले आए, तो -5 + 8 is equals to b and b is equals to 3. क्या b is equals to 3 आ रहा है आपका? Yes or no? सर लास्ट टाइम बी 13 था। लास्ट टाइम क्या था बेटा? 13 जो इससे पहले हमने सॉल्व किया है, जी। मेरे ख्याल से शायद हम लोगों ने वहां पे -x कॉमन लिया था, खाली माइनस की गलती हुई होगी शायद, ठीक है? आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आप लोगों का आंसर क्या आया हुआ है बेटा? जिसने क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है करेक्ट? सर बी इज इक्वल टू 3 सही आंसर है। बट चलो ये ठीक हो गया। ओके, व्हेन b इज इक्वल टू 3, अब आपके सामने ऊपर ऊपर एक और कोफिशिएंट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है बेटा आपको? क्या लिखा हुआ है कि -4b इज इक्वल टू a, लिखा हुआ है कि नहीं ताहा बेटा? क्या ये लिखा हुआ है इधर कि नहीं, -4b इज इक्वल टू a? यस सर। तो अब b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो -4 इंटू b की वैल्यू है हमारे पास क्या है बेटा?
b की वैल्यू क्या है 3, दैट इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू -12। क्या यही आ रहा है आप लोगों का भी आंसर? Yes, sir. तो a इज इक्वल टू -12, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? अब अगर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन ऐसे होता है। अब मैं जरा क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, जरा प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, मैं वैल्यूज देख रहा हूं जरा। तो 2x² - 5x प्लस a की वैल्यू हमारे पास आई है -12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -12 डिवाइड बाय x² -16। हाजिम, यस सर। इट्स अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन नाउ, ठीक है? जी सर। एग्जामिनर आपको कहेगा कि इसको सिंपलीफाई करो, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की गेम है? यस अभी तो है। न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। डिनोमिनेटर तो आइडेंटिटी है x + 4 x - 4, राइट? यस और नो? यस। और यहाँ पर होगा मिड टर्म स्प्लिट, यहाँ पर होगा मिड टर्म स्प्लिट, तो 2 × 12 इज 24, 24 तो और 24 के फैक्टर्स लिखो, 112 124 212 3 8, 8 में से 3 माइनस करो तो 5 आता है, तो 8 and 3 आर द फैक्टर्स, सो राइट 2x² -3x -8x -12, वी नीड -5x, तो छोटे वाले को प्लस कर देते हैं, x कॉमन कर ले, अंदर अंदर आ जाएगा बेटा 2x + 3, और यहाँ पे -4 कॉमन कर ले तो अंदर आ जाएगा 2x + 3, तो ये आ रहा है बेटा 2x + 3 इज कॉमन एंड x - 4 इज द लेफ्ट ओवर। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे करके लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था। न्यूमरेटर को जब हमने एक्सपेंड किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये आया, फैक्टराइज किया तो ये आया, और डिनोमिनेटर से ये आया। यस और नो? यस और नो बेटा? यस। अब देखो x - 4 कट रहा है, हाँ। देखें यहाँ पे जरा और करें, 2x + 3 डिवाइड बाय x + 4 लिखा है ना, इधर देखें जरा बेटा, ये देखें बेटा, 2x + 3 डिवाइड बाय x + 4 होगा, b की वैल्यू 3 आई है ना हमारे पास। यस और नो? यस और नो? ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है पेपर के लिए, पेपर के अंदर, ठीक है? और ये था ट्रिकी क्वेश्चन फॉर A*, ट्रिकी फॉर A*, और ट्रिकी कुछ भी नहीं था, कॉमन सेंस लगाना था कि एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव, तो इट मींस दैट दिस इज इक्वल टू दिस, द लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वी कंपेयर द डिनोमिनेटर्स, हमने कहा कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है। एग्री? राइट रिदा, रमशा? सो वी आर टेक्निकली डन विद दिस। अगर आप लोगों में से अभी भी किसी को समझ नहीं हो तो ये वीडियो स्टार्ट से थोड़ी सी देख लेना। ओके जी, ये पेपर ओपन कर लें बेटा। इट्स 402411 में जून 21। ये पेपर ओपन कर लें बेटा, इसमें खाली डिफिकल्ट केसेस करेंगे, आसान वाले छोड़ देंगे। सर अब्दुल बासित आपका ये हो गया, ये पेपर 11 में जून 21 ओपन हो गया बेटा। स्टार्ट कर लूं पेपर? पेपर बुकलेट के अंदर खोल लें बेटा जी, कैन आई स्टार्ट? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। ये 11 है, मई जून 21, ठीक है? 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 746, राइट हाजिम? यस, एक मिनट पेपर एंड 3.89 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 389, तो जरा माइनस करना है, तो 746 माइनस 389, तो 16 में से 9 गया तो हमारे पास आता है 7, ये 3 है, 3 में से 8 नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया हमारे पास आता है 5, 6 में से 3 गया हमारे पास आता है 3, तो 357 इज द आंसर। बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 5 + 3 2 6 -1, फिर एडिशन, तो 5 + 6 इज 11, 11 - 1 इज 10। हुरैरा, फ्रॉम द लिस्ट अबव राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 70, 70 का फैक्टर होना चाहिए, तो पहले 70 के फैक्टर खुद निकाल लेना, वरना आप ये पेपर क्वेश्चन नहीं रटा नहीं मार सकती, ठीक है? तो 70 के फैक्टर्स निकाल लो। 1 × 70,
2 मल्टीप्लाई बाय 35, ये चारों नंबर नहीं लिखे हुए। 3 के टेबल में 70 नहीं आता क्योंकि 7 + 0 7 आ रहा है। 4 के टेबल में 70 चेक करना है, तो आप लोग चेक करें कि 74 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 74 ये साइड पे करना है रफ वर्किंग, क्योंकि इवन नंबर है तो डाउट है कि हो सकता है आ रहा हो। 4 1 जा 4, तो ऊपर आ रहा है 3 0 30, नहीं आता 70। 5 में आता है, यस फॉर श्योर आता है। 5 टाइम्स 14, यस आई कैन सी 14। कैन यू सी दैट 14 हियर? रिदा, मलाइका, नूर, कैन यू सी दैट? ओके, अ क्यूब नंबर, मैंने क्यूब नंबर्स आपको ऑलरेडी याद कराए हैं, तो हमें पता है कि 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125। आई कैन सी 125। एन irrational number, irrational number बेटा वो क्या है? irrational number, they are numbers which cannot be written as fractions. So let's check. It is already a fraction, cross. It's a fraction. Okay, square root 8, we have a doubt, cross. Square root 25 is 5, cross. 14 cross, 60 cross. So square root 8 is an irrational number because the value is greater than 2 but less than 9. Yes or no? We cannot write this number as a number, as a fraction. Yes or no? So question 3 is easy. I'm gonna leave it. Okay. Find 2 by 3 of 6 by 11. तो 2 by 3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, और स्ट्रेट फायर करना है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। क्रॉस में हम लोग सिर्फ कटिंग कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो 2 2 4 and 1 4 by 11 is the answer। जी, ये आसान क्वेश्चन है, खुद ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। All right, question number 5 देख लें बेटा। The diagram shows a quadrilateral ABCD and AB is extended to this, so we can easily find out this angle. So 180 minus 122 is what? 58? Yes or no? In order to find out x, so 360 minus 135 minus 58 minus 83. पेपर 1 है तो पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 135 plus 58 plus 83, तो 5 plus 8 सर अगर हम is 180 से डायरेक्ट 58 को माइनस कर दे किससे? तो ये वो बेटा सही है। साइक्लिक 50 क्वाड नहीं है ना, 58 ये साइक्लिक क्वाड तो नहीं है ना कि आप वो वाला लगा रहे हैं। 5 plus 8 is 13 plus 3 is 16, 4 plus 5 is 9, 9 plus 8 is 17 and it's 276, so 360 minus 276। रफ वर्किंग करके ही हम लोगों को आंसर देना है क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 7 नहीं जाता तो ये 15, ये 2 हो गया। 15 में से 7 गया तो इट्स 8 एंड 2 में से 2 गया 0, इट्स 84 डिग्री। ठीक है बेटा, आपका आंसर गलत आता अगर आप 180 से माइनस करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको कि नहीं? यस सर। ये साइक्लिक कोड तब होता बेटा जब दिस प्लस दिस भी 180 होता है। नजर आ रहा है 135 प्लस 83 बहुत बड़ा नंबर है 180 से। हाँ जी, 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कोई प्रॉब्लम है एलसीएम एचसीएफ में? एनीवन बेटा, इफ यू हैव द प्रॉब्लम जस्ट से यस, मैं सॉल्व कर दूंगा, इफ नॉट तो आई कैन प्रोसीड। रिदा, हुरैरा, रमशा, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 6? No, sir. No, sir. Question number 7 is a trapezium. Okay, it's a trapezium. I can see that very clearly. I can see that very clearly that it's a trapezium, and in trapezium we have few things. Parallel lines होती हैं, तो दो parallel लाइनें होती हैं। ये can you see that? Okay, ये हमारी height है, ये हमें given नहीं है। Okay, area of the trapezium is already given. So formula of the area of the trapezium is 1/2 into L1 plus L2 into height. Area is already given 85 is equals to 1/2 into L1 plus L2 is 7 plus 10 is 17 और height is unknown। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 85 multiplied by 2 is 170, 7 plus 10 is 17s, so divide by 17 on both sides, so 17 10s are 70 होगा ना बेटा? Yes or no? So h is equals to 10 centimeter। समझ आ गई बेटा सबको? बेटा किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करो जल्दी से। अलजेब्रा देखें आप लोगों का वीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए लाइट टर्म्स को पहले इकट्ठा करें। 6x minus 2x plus 15 plus 8, 4x
15 plus 8 is how much? 15 plus 8 is 23. So that is the answer. 4x plus 23. x minus 5 होल स्क्वायर है, आप a माइनस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं और ब्रैकेट्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरीके कर रहा हूँ। एक ये है, एक तरीका ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus 2 into x into b is 5 plus 5 square। तो ये आता है बेटा x square minus 10x plus 25। लेफ्ट पे आ जाए, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x square minus 5x minus 5x minus minus plus 25। सो x square minus 10x plus 25। दोनों तरीके करेक्ट हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको स्ट्रॉन्ग लगे। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? बेटा यस और नो, सिर्फ यस और नो बोलने में प्रॉब्लम है आप लोगों को। टर्न ऑन योर माइक एंड से यस। Yes, sir. ओके, नाउ इंसर्ट द करेक्ट सिंबल इक्वल टू ग्रेटर और लेस टू मेक ईच स्टेटमेंट करेक्ट। 0.6 kg और 60 ग्राम, तो दोनों को सेम करना पड़ता है तभी जाके हमें पता चलता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 ग्राम इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो हम लोग 60 को जरा 1000 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये आता है 0.06, तो 0.06 kg। तो now I can see that 0.6 kg is greater than this one. Yes or no? Yes or no? Sir. Now 15,000 meter it is equals to 15 kilometer. Yes, we know that कि 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर होंगे। And now they say that 4 meter square it is dash to 400 centimeter squares। तो ये हमें देखना है कि 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पहले हमने ये देखना होता है। अब ये जो है ना, ये स्टार क्वेश्चन था ये वाला बीच में, पहले दो आसान थे। तो ग्रेटर तो होगा 4 मीटर स्क्वायर। अभी सबर करो ना, 1 मीटर में होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। एग्री? स्क्वायर कर लो पहले, तो स्क्वायर करके देख लो तो ये आता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। 100 को स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है कि 4 मीटर स्क्वायर जो है ना ये बड़ा नंबर है, और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लेसर नंबर। यस और नो? यस, यस और नो? ओके, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, एक फर्स्ट सिग्निफिकेंट तक करना है। हाजिम, फर्स्ट सिग्निफिकेंट 3 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट 3 यस, फिर 1 है, फिर 5 है। ओके, अब करनी है जब शेड हो गया तो अब राउंड कर लो। तो 3 के बाद क्या है 6, तो ये हो जाएगा 4। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। ओके, माइनस 1 के बाद है 8, ये भी 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 200। एग्री? यस। और 5 के बाद 2 है तो ये हो जाएगा 50। तो 200 डिवाइड बाय 50 इट इज इक्वल्स टू 4। ये 4 के बराबर है। तो दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। मलाइका समझ आई है बेटा? All right, Hurera, read the question. Your probability is very weak. Hurera, In a survey, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meter. One of these 100 women is picked at random. Calculate the probability that she is taller than 1.9 meter. so what we have to do then? एक सर्वे है, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meters. Agree? One of these 100 women is picked at, if 3 out of 100 it is taller, means 97 out of 100 is not taller. Yes or no? Yes or no beta? सर। So हुरैरा आपको समझ आई है बेटा? आपको समझा रहा हूँ। जी सर, समझ आ रही है। ओके, मैंने आपको बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी या 1 होती है या 100 होती है। ठीक है, ओके, अ न्यू housing state is being planned. There are 3 possible plans A, B, C. A survey was carried out to which plan preferred. Okay, plan और relative frequency. I can see that कि plan B ज़्यादा लोगों ने preferred किया है, 0.5 है इसकी probability. 52 people preferred C. Find out how many
people preferred A. तो 52 it is equals to 0.2. देखो ना 52 ये बराबर है 0.2 के, तो 0.3 it is equals to x. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so 52 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल्स टू 0.2x. तो यहाँ पे पहले डेसिमल रिमूव करना जरूरी है. तो 52 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10 is equals to 2 by 10x. Right, Hurera? It's the same thing. I just removed the decimal because it's paper 1, right? So 52 multiply by 3 by 10 multiply by 10 by 2, वो यहाँ पर आके flip हो जाएगा. तो I can cancel 10 and 10. So 52 multiply by 3 divided by 2 is equals to x. तो 2 and 52 काट लें. 2 ones are 2 and 26. So 26 multiply by 3 is the final answer. So 26 multiply by 3 अब rough working कर सकते हैं. 26 times 3. 3 6 are 18. 3 2 are 6 plus 1 7. So 78 people they preferred A. Calculate the total number of people who surveyed. So now we can see that A plus C is 0.5. So it means that कि total people निकालने हैं आपने. तो आप इजीली आसानी से कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि B वाले कितने हैं. So A is equals to 0.3 and it is equals to 78. C is equals to 0.2 and it is equals to 52 people. Agree, right? तो सर हम इसको 1 0.3 नहीं रख सकते टोटल को? हाँ कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है. 80 plus 50 is 130. Yes or no? Yes or no? Yes, It sir. means that B is equals to also 130. So 130 plus 130 is how much? It's 260. There are 260 people in the survey. हुरैरा समझ आइए बेटा? जी सर. कहीं पे समझ ना पड़े तो जी नहीं बोलना. अच्छा, डायरेक्ट पूछना है. ओके सर. Okay, Bernard bought a game in the USA for $15 and Alice bought the same game in Zambia and paid the equivalent price in Zambian Kwacha ZK. One Zambian Kwacha is equals to 0.075 dollars. Calculate the price Alice paid. I think that's easy. You can do it yourself. Scale के नीचे scale लिख दें बस खाली. Is this clear? आपने ये लिख देना ना कि आपने एलिस ने पेमेंट की है ना, तो शी बॉट दैट, तो आपने 15 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जी हाजिम जरा रीड करो बेटा क्वेश्चन. Two numbers x and y are such that x ratio y is equal to 5 ratio 11. स्टॉप. तो क्या हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं दैट x is equals to 5 and y is equals to 11? Can I? Yes. Okay, so can I say that 11x is equals to 5y? Yes, okay. It's the same thing ना. Okay, so now x plus y is equals to 18. तो दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेते हैं. So x is equals to minus y plus 112. Agree? So यहाँ पे जरा x को सब्जेक्ट बना लें, तो x is equals to 5 by 11y हो जाएगा. Is this clear? Is this clear? नहीं समझ आया. ये नहीं समझ आया सर, क्या किया ये? ये देखें जरा, ये समझ आया कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने. क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्यों है हमने? ये क्यों किया बेटा? रेशो में यही तो करते हैं हम लोग. देखें ये जो लिखा है ना, इट्स इन रेशो एंड इट इज इन फ्रैक्शन. ये रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है. समझ आ गई? मैं इसको सेम एज इट इज लिख सकता हूं कि दैट x रेशो y इट इज इक्वल्स टू 5 रेशो 11. इज दिस क्लियर नाउ? हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 11. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है सर. ये मैंने ये समझाया आपको, ठीक है. मेरे पास वहां पर एक इक्वेशन है, मुझे y को सब्जेक्ट बना दो. चलो y को सब्जेक्ट बना दो, ताकि y डालूंगा वहां पे वैल्यू और x निकल आएगा ऑटोमेटिकली. तो जरा y को सब्जेक्ट बनाएं. तो 11x over 5 हो जाएगा. तो 11x over 5 is equals to y. तो जरा y को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. x is equals to माइनस बाहर है. ओके, ये आ रहा है 11x डिवाइड बाय 5 प्लस 112. ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो?
यस और नो? ओके जी, तो x इज इक्वल्स टू -11x डिवाइड बाय 5 प्लस 112। ठीक है जी। अब ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो 112 को पहले वहां पे ले जाते हैं, हमें x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम करना चाहते हैं, यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, लेकिन 112 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लोग यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दैट x इज इक्वल टू -11x डिवाइड बाय 5। बेटा ये स्टार क्वेश्चन है, अच्छा याद रखें। 112 मल्टीप्लाई बाय 5, तो रिदा 112 मल्टीप्लाई बाय 5 जरा रफ वर्किंग में करना है। तो 5 2 10, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 1 5, तो ये 560 आ रहा है। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? Now the denominators are same. Write the denominator once. तो यहाँ पे लिखते हैं 11x plus 560, तो 5 उधर चला जाएगा, तो 5x is equals to -11x plus 560। -11 को यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा 5x plus 11x is equals to 560, that is equals to 16x is equals to 560 divided by 16 on both sides। अब 560 डिवाइड बाय 16 करना है, और वो भी कटिंग के जरिए। तो हम लोग साइड पे करते हैं इधर, 560 डिवाइड बाय 16, तो हाफ करते जाएं, तो 280 आता है बेटा वहां पे ऊपर। 280 डिवाइड बाय 8, फिर हाफ करें बेटा, 140 डिवाइड बाय 4 आता है हाजिम। Yes. फिर 70 डिवाइड बाय 2 आता है। Yes. फिर 35 आ रहा है, divided by 1. बस। तो 35, तो x की वैल्यू इज 35। नाउ लेट्स फाइंड आउट y। तो y निकालते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि x इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू -5 प्लस 112। तो y को इधर ले जाए, 35 को इधर ले जाए, तो -35 प्लस 112, प्लस माइनस इज माइनस, साइन प्लस का आएगा। 112 में से 35 माइनस करो बेटा, 112 माइनस 35, सो 112 माइनस 35, तो ये 10 है, 11 है तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 3 गया तो 7, तो 77 इज द आंसर फॉर y। समझ आ गई बेटा? यस और नो? So, ओके जी। रिदा, हुरैरा, रमशा, मलाइका, मलाइका, अयान, अयान बेटा समझ आ रही है? हमजा, बुलमीना? Yes, Yes sir. Okay. Now they say that this is the end to term to term rule for a sequence, multiply by 2 and add 3. The first three numbers in the sequence are 1, 5 and 13. Write down the next two terms. So 13 multiply by 2 add 3. ये रूल है इसका, लिखा हुआ है। 13 multiply by 2 that is equals to 26, add 3 that is equals to 29, that is the next term 29। we need to tell two sequences, दो terms बताने हैं। अच्छा, write down the next term, एक ही बताना है, 29 is the answer। this is the end to term to term rule for a different sequence, square and subtract 5। the second and the third term in this sequence are -1 and -4। write down the fourth term in this sequence। जी अब बताएं क्या करूं? the second and the third term in the sequence are -1 and -4, और रूल क्या है? स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट करो 5 से। तो किसको स्क्वायर करूं? -4। तो 3 को 3 को बेटा। सर कैसे 3 को? आप मुझे बताएं कि सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास लिखी है, देखिए फर्स्ट टर्म ये होगी, फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड वन इज -1 एंड थर्ड टर्म इज -4। ओके, वी नीड टू टेल द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए किसको स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट 5 करना है? -4 को। श्योर? थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, थोड़ा सा सोचें, खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोच लें, थिंक अबाउट इट। बेटा इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो फिर अभी खैर है कोई मसला नहीं कि अगर आप थोड़ा सा इस पे थोड़ी वर्किंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी खैर है, आराम से सोचें आप। देखें पहले वाले का आपने खुद ही देख लिया है, ठीक है, कि आपके पास राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस था
हमने क्या किया कि हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है, तो राइट डाउन द फर्स्ट फोर्थ टर्म इन दिस सीक्वेंस। ताहा व्हाट वी हैव टू डू, सो -4 का करेंगे हम लोग स्क्वायर और फिर 5 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो -4 स्क्वायर -5, so -4 square is 16, 16 minus 5 is 11। तो सर हमने भी ये कहा था ना। हमने तो -4 ही कहा हाँ, ना। हम आपको नहीं कह रहे नहीं, थे मैं ना। आपको तो नहीं कह रहा था ना, मैं अहमद को कह रहा था, उसने 3 बोला था। हमें लगा हम गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ठीक कर रहे थे, मैं आप लोगों का नाम नहीं लिया, मैं अहमद को क्लियर कर रहा था, अहमद ने 3 बोला था। हम्म ओके, राइट डाउन द टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यूज, -4 क्यों नहीं समझ आई? क्या चीज? -4 क्यों नहीं है हमने? बेटा यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट 5 करो, तो 4 को -4 को स्क्वायर करूंगा, सब्ट्रैक्ट 5 करूंगा तो अगला नंबर आएगा ना, ये रूल है। ठीक है समझ सर। आई? राइट डाउन द टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है? देखो -1 आया ना आपके पास, रिदा? जी सर। The second term is -1, right? हम्म I'm doing the reverse now. I'm going to add 5 now. Yes or no? यस सर। तो -1 + 5, मैं फर्स्ट की तरफ जा रहा हूं तो 4 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 2 और -2 आ सकता है ना? यस और नो? यस सर। तो हमने रिवर्स किया है, जहां पे वहां पे माइनस हो रहा था फिर प्लस किया है, और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो 2 और -2 कैन बी द आंसर्स। ये -2 क्यों हो सकता है? बेटा स्क्वायर रूट के 2 आंसर्स होते हैं ना बेटा, +2 और -2। ओ, ओ तो इस तरह किया कि तुम कहोगे पहली दफा मैंने नहीं तुम्हें ये बात बताई है। मुझे नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग इंशाल्लाह कल प्रोसीड करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लें, जहाँ पे आप लोग फंसेंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस कर लोगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच, अटेंडेंस टाइम, सो वेट अ मिनट। ओके, सो इन दिस क्लास अहमद, बरीरा, हाजिम, हुरैरा, मलाइका, मरियम, सॉरी ये गुलमीना, मोहम्मद ताहा एंड रमशा एंड रिदा इज प्रेजेंट। चलें बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, एंड नूर इज आल्सो प्रेजेंट। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.